शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के करीब वाक़े अलीपुर को कर्नाटक में शिया मुसलमानों का मरकज़ समझा जाता है। अलीपुर की अज़ादारी मातम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मुहर्रम के आगाज़ से लेकर 2 माह से ज़ायद वक़फ़े तक यहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर शहदाए करबला की याद में जुलूस, मजालिस, मनक़बती व नातिया मुशायरे मुनक़द किए जाते हैं। साल 2022 के माह मुहर्रम के मौके पर अलीपुर में पूरे जोश व जज्बे के साथ शहादते गमे हज़रत इमाम हुसैन मनाया जा रहा है। यौम आशूरा के मौके पर यहाँ बड़े पैमाने पर मजालिस और जुलूस का इनेकाद अमल में आया। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सब याद हुसैन में गमगीन नज़र आए। मातमे शब्बीर के इस मंज़र को देखकर किसी शायर ने क्या बड़ी बात कही है। सितारे बन के फलक पर वो सज गए आंसू, सितारे बन के फलक पर वो सज गए आंसू, गमे हुसैन में आँखों से जो गिर गए आंसू, गमे हुसैन में आँखों से जो गिर गए आंसू। मुझे बताओ कि रोदादे करबला सुनकर, मुझे बताओ कि रोदादे करबला सुनकर, है कौन रोके से जिसके रुके रहे आंसू, है कौन रोके से जिसके रुके रहे आंसू। अलीपुर के उलमाए कराम, शोराए कराम और दानिश्वर दास्ताने करबला शहादते हज़रत इमाम हुसैन और इसके अज़ीम मकसद पर कुछ यूँ रोशनी डालते हैं। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। जो है यौम आशूरा है और किस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाई जा रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear brothers and sisters, I would like to start my short statement by posing a simple question. Why we are wearing today black dresses, and why we are commemorating today, and why we are spending our all day in sorrowing upon Imam Hussain alayhi salam. Dear brothers and sisters, the Imam Hussain alayhi salam was the beloved grandson of our holy prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and he was the second son of the Imam Ali alayhi salam and the lady noble Fatima salamullahi alayha. Some unbelievers and some people who are developing grudges towards Muslims states and dictates that Imam Hussain alayhi salam left his hometown Medina to create a chaos, and his aim was to get the power. No, not at all. Imam Hussain alayhi salam, when he was leaving his hometown Medina, he dictated and also he wrote his will, and he mentioned his aim from his existing from Medina. He called his brother Muhammad Hanafiya and he wrote his will and gave him, and he wrote and he dictated for his brother by saying, Inni lam akhruj ashiran wala batira wala zaliman wala mufsida. Oh dear brother Muhammad Hanafiya, if your brother Hussain is leaving Medina, so your brother Hussain is not leaving Medina to create any show off, to create any chaos, to oppose someone.
if I am leaving my grandfather's city Medina with my all household, my aim is only one, that I want to correct the Muslim Ummah. So dear brothers and sisters, Imam Hussain alayhi salam left the Medina to correct the whole Muslim community. No, not only whole Muslim community, but Imam Hussain alayhi salam left Medina and he gave the sacrifice of his body and his soul, and also he present all of his family members in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. His aim was only one, that was to create justice between all humanity. So if we are commemorating today on the 10th day of Muharram, which is the first month of the Islamic calendar, we are commemorating Imam Hussain alayhi salam, and our aim is same as Imam Hussain alayhi salam aim. If we are commemorating today here to send a message to whole world that if we are joining here and we are sorrowing upon Imam Hussain alayhi salam, our aim is only one, that we are not commemorating to create any chaos, and also we are not commemorating to create any show off, and also we are not commemorating to oppose someone. If we are commemorating here, our aim is only one, to serve the all humanity, to stand against the oppression. जैसा कि अभी क़िबला ने बयान किया, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल के साथ अपनी बात का आगाज़ करता हूं, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह आशूरा क्या है, किसकी यादगार है और क्यों मनाया जाता है। एक सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करबला के लिए निकले तो कोई बड़ा लश्कर लेके नहीं निकले, जंगजुओं को साथ लेकर नहीं निकले, सिपाहियों को साथ लेके नहीं निकले, फ़ौज को साथ लेके नहीं निकले। इमाम छोटे छोटे बच्चों को, अपनी ख़वातीन को और कुछ नौजवानों को, कुछ बूढ़ों को, या यूँ कहिए कि अपने खानवादे के तमाम अफराद को, छोटे बड़ों को, सबको लेकर के साथ निकले। अब सवाल ये है कि एक इंसान अपने इन छोटे छोटे बच्चों को या ख़वातीन को मुसीबत में क्यों डालेगा? सामने जो हाकिम है, जो उनसे बैत का मुतालबा कर रहा है और कह रहा है कि बैत कर लो, सुकून से रहो, ऐसे में उनको बैत कर लेना चाहिए थी, सुकून से रह लेते, ना बच्चों पर कोई आँच आती, ना उनकी ख़वातीन दरबदर की तशहीर की शिकार होती। ऐसी कुर्बानी देने के लिए एक इंसान क्यों मैदान में निकलेगा कि उसका छोटा सा बच्चा भी अगर मारा जा रहा है तो उसको कोई परवाह नहीं है, उसका जवान मारा जा रहा है तो उसे कोई परवाह नहीं है, उसकी घर की ख़वातीन बेपर्दा हो रही हैं तो उसे कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब ये है, अक्ल सोचने पर मजबूर होती है कि कोई इतनी बड़ी बात ज़रूर थी, कोई इतना बड़ा इशू ज़रूर था कि जिसके लिए उसने ये समझा कि मेरे बच्चे क़ुरबान हो जाएँ तो हो जाएँ, मेरी ख़वातीन बेपर्दा हो जाएँ तो हो जाएँ, मगर ये जो इस वक्त हक़ को बातिल बनाया जा रहा है, सच को झूठ बनाया जा रहा है, इंसाफ को नाइंसाफ़ी में बदला जा रहा है और अपनी तमाम नाइंसाफ़ियों को, अपने तमाम मज़ालिम को, अपनी ज़्यादतियों को शरीयत का नाम देकर आगे उसको राइज करने का जो एक कदम उठाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है, और अपनी हुकूमत को शरीयत का नाम देकर, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को इस्लाम का नाम देकर, कुरान का नाम देकर, शरीयत का दीन का नाम देकर के मनवाना चाह रहा था सामने जो हाकिम था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि एक मामूली इंसान नहीं थे, एक आम इंसान नहीं थे, यूँ तो मदीने में उस वक्त और बहुत से अफराद थे जिन्होंने बैत नहीं की थी, मगर न सामने वाले हाकिम को उनसे कोई ऐसा तारुज़ था, ना ऐसा कोई उनसे गरज थी कि उनकी बैत के लिए इतनी कोशिश करे। ये भी बैत के लिए इतनी कोशिश कर रहा है और ये बैत के लिए उतना शिद्दत के साथ इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई मामूली इंसान नहीं है। मतलब ये था कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत जो थी, ये मुसलमानों के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद थे, उनके चश्मो चराग़ थे, उनके मिशन को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी उनके हाथों में थी। और वो ये देख रहे थे कि ये पूरा मक्का, पूरा मदीना मेरी तरफ देख रहा है, पूरा अरब मेरी तरफ देख रहा है, पूरा इस्लामी माशरा मेरी तरफ देख रहा है, या आगे बढ़ के और बात यूँ कहूँ कि पूरी इंसानियत मेरी तरफ देख रही है, पूरा बैनुल अक़वामी जो एक ये कि वो मेयार और सतह है वो सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ सबकी नज़रें उठी हैं और सबको ये है कि वो हुसैन क्या करते हैं। अगर हुसैन हक़ को
बातिल मान लेते हैं तो पूरी दुनिया हक़ को बातिल मानने लगेगी। हुसैन सच को झूठ कबूल कर लें तो पूरी दुनिया सच को झूठ कबूल करने लगेगी। अगर हुसैन एक जालिम के जुल्म को कबूल कर लें तो पूरी दुनिया में फिर कोई हक़ के लिए और मज़लूमियत के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। तो जिनके रुतबे बड़े होते हैं उनकी कुर्बानियाँ भी बड़ी देना होती हैं। इमाम हुसैन ने देखा कि मेरी तरफ सबकी नज़रें उठी हैं, इंसानियत मेरी तरफ देख रही है, इस्लाम मेरी तरफ देख रहा है, उम्मत मेरी तरफ देख रही है। तो इमाम ने करबला में इसीलिए अपना सफ़र इख्तियार किया और वहाँ जाके कुर्बानी दी, और ये कहते हुए कुर्बानी दी कि देखो हम झूठ के नाम पर तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे, ना इंसाफ़ी के नाम पर तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। हम अपना गला कटा लेंगे मगर हम हक़ को नहीं कटने देंगे। हम अपना गला कटा लेंगे मगर इस्लाम को नहीं कटने देंगे। हम अपने बच्चों को कटवा लेंगे मगर इंसानियत को तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में रूनुमा होने वाला ये वाक़या सदियों के बाद भी आज तक ज़िंदा और तरोताज़ा है। इसकी वजह यह है कि करबला की जंग कोई शख्सी जंग नहीं थी, हक़ व बातिल की जंग थी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जो भी इस्लाम से, दीन से वाकिफ़ हैं या जो इंसानियत के दायरे में आते हैं वो मज़लूम करबला इमाम हुसैन की याद मनाते रहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों की खिदमत में बस इतना बताना है कि चूँकि हक़ व बातिल की जंग थी, यजीद बातिल पर था और हुसैन हक़ पर थे। यही वजह है कि आज यजीद का नामो निशान भी नहीं है, उसका मकसद भी ज़िंदा नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए कि हुसैन का मकसद रसूल का मकसद था और रसूल अल्लाह का मकसद अल्लाह का मकसद है। शुक्रिया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 साल के सिन में थे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। यही दास्तान चलता आ रहा। इसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदियत ने बैयत बनना चाहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त यानी जालिम की बैयत हमारे लिए कबूल नहीं है। मदीना छोड़ के करबला में आए, करबला में अपने पूरे घरदार को पूरे को शहीद होने में मुब्तला हो गए, मगर इस्लाम बचा के इस्लाम का परचम बढ़ाया। जुलूस वगैरह नहीं निकाला गया, बताइए। इंशाअल्लाह हमें इस साल यानी 2 साल से कोरोना के वजह से हमारा पूरा मुहर्रम थोड़ा ये हो गया था, मैंने आज़ादारी हुई मगर पूरे तरीके से आज़ादारी होने के लिए नहीं हुआ। इस साल अच्छे भरपूर से पूरे तरीके से आज़ादारी करने के लिए से पूरे तरीके से मनाए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे ही हमारी आज़ादारी ही रहेगी इंशाअल्लाह। आपका नाम? सैयद मोहम्मद आखिल, सदर अंजुमन जाफरिया अलीपुर। कुल्लो अर्जिन करबला कुल्लो यौमिन करबला, यानी हर ज़मीन करबला है, हर दिन आशुरा है। आशुरा का डेफिनेशन यह है, आशुरा इंसानियत के मरकज़ का, करामतों का मरकज़ है, यानी इंसानियत के करामतों का मरकज़, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। करबला, करबला जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का जज्बा अता करती है। करबला हर जालिम को निस्तो नाबूद करने का हौसला अता करती है। करबला किसी एक कबीला या एक किसी मिल्लत या किसी मज़हब की जागीर नहीं है, करबला तमाम जिंदा ज़मीरों की जागीर है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मज़हब या मिल्लत के रहनुमा नहीं है, बल्कि तमाम इंसानियत के रहनुमा और रहबर हैं। और क्या खूब कहा है जोशमल आबादी ने, इंसान को बेदार होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो इसी तरीके से जो आज हमारे वतन अजीज़ में ये वतन जो है 300 साल पुराना है, यहाँ जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू होता है तमाम घरों में सियाह कपड़े, सियाह परचम सब लगा के तमाम अज़ादार यहाँ पे अक्सरियत जो है मुहिब्बान अहले बैत, मुहिब्बान आशिक़ाने रसूल खुदा है, इसलिए तमाम हजरात उसका इसका मुहर्रम का जो इस्तकबाल करते हैं वो सियाह कपड़ों से और गमगीन और सोच के निकालते हैं। इसी तरीके से जो हर एक दौर के
जालिम या कोई भी हुकूमत हो, हुकूमत के लिए हमारा करबला यानी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यूनिवर्सिटी है एक नमूना है। एक पुरसुकून ज़िंदगी करना है और पुरसुकून एक मुल्क बनाना है तो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना लेंगे तो सबके लिए आसान रहेगा, यानी इंसानियों के लिए आसान रहेगा। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानियत के लिए अपने घर बार को लुटाया है। यहाँ ने 6 महीने के तिफिल से लेके 90 साल तक बुजुर्ग तक सिर्फ 72 शहीद करबला में हुए, जबकि जुल्म के खिलाफ जो बताते हैं ना, एक मुर्तद यजीद जो सबसे पहला बागी इस्लाम का और इंसानियत का जो हलाल मोहम्मदी को हराम करार देता था, जो हराम मोहम्मदी को हलाल करार देता था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर बार लुटाया। आज जो कुछ भी दुनिया में जो पुरसुकून ज़िंदगी इंसानियत बची है सिर्फ इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है या नवाज़ रसूल की बदौलत है। वस्सलाम। मैं डॉक्टर सैयद रोशन अब्बास हूँ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनता दल एंड नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इन जनता दल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज हम यहाँ रोज़ा आशूरा मैदान करबला में इसलिए जमा हुए हैं कि इमाम हुसैन फ़ातिमा ज़हरा को इमाम हुसैन का पुरसा देने के लिए इस मैदान करबला में अलीपुर में हम जमा हुए हैं। इमाम हुसैन ने इत्तेहाद का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया और हम इस आज़ादारी को ता क़यामत तक इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का पैगाम करबला से हम ये पैगाम मिलता है कि औरतों का भी सबसे बड़ा हाथ होता है। हर फील्ड में भी औरतों ने डट कर खड़ा है और इंशाअल्लाह हम करबला से ये पैगाम लेते हैं कि हम भी दुश्मनों के आगे डट कर खड़े रहेंगे। हम यहाँ सब मैदान करबला अलीपुर में जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं कि आज हम इमाम हुसैन की याद को ताज़ा मनाने के लिए, इमाम हुसैन ने जो नाना के दिन को बचाने के लिए करबला के मैदान में 61 हिजरी को रोज़े आशूरा अपनी जान की कुर्बानी दी है, इसलिए आज हम सब उनकी याद मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सारी कायनात के यानी इस ज़माने के लोगों को भी बता दिया जुल्म क्या है, मजलूम क्या है, बातिल क्या है, हक़ क्या है। जहाँ पर भी बातिल की यानी जहाँ लोगों को बता दिया जुल्म के आगे अपना क़याम करे, मजलूम की हिमायत करे, हक़ का साथ दे, बातिल को निस्तो नाबुद करे। क्या है उसके साथ? हुसैन सिर्फ एक मज़हब के लिए महदूद नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए हैं या शियों के लिए हैं। हुसैन हर कौम के लिए हैं, क्योंकि सरोजिनी नायडू कहते हैं, जो भारत का कोकिला कहते हैं, इतनी बाअदब लहजे से वो बात करती थी कि उनको भारत का कोकिला कहते हैं। वो कहती हैं कि हुसैन बहुत साल पहले इस दुनिया से गुज़र गए और करबला का वाक़या ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि आज हुआ है। क्यों? वो कहती है, रीज़न में ये कहती हैं क्योंकि हुसैन इज़ विथ ट्रूथ एंड ट्रूथ नेवर डाइज। हुसैन सच्चाई के साथ थे, हक़ के साथ थे, तो इसीलिए कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लब्बैक या हुसैन, हर जगह लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद हैं, तो हम भी कहते हैं लब्बैक या हुसैन। चलते चलते हम गए हैं रात गलियों में हमारे, थक गए हैं खत बचे बेगुनाहों को बिठाओ। शाम वालों बेटियां हैं ये नबी की ना सताओ। शाम वालों बेटियां हैं ये नबी की ना सताओ। ना दवा है ना पिया है, आए आबिद पे जफा है। ना दवा है ना ग़िज़ा है, आए आबिद पे जफा है। चलेगा इस ज़ालिम ताज़िया ने लगाओ। शाम
सताओ, शाम वाला बेटियां हैं ये नबी की न सताओ। शाम वाला को बता दो मैं नवासा हूँ नबी का। शाम वाला को बता दो मैं नवासा हूँ नबी का। नौके नज़ा पर से पुरा भाई जा पर कर सुनाओ। शाम वालों बेटियां हैं ये नबी की न सताओ। शाम वालों बेटियां हैं ये नबी की न सताओ।